میں بتاتا ہوں کہ پھر کیا ہوا ہوگا۔ اس دردناک واقعے کے بعد گاؤں والے چند دنوں تک آپس میں خسر پھسر کرتے رہے ہوں گے۔ رازدارانہ انداز میں سردار شاہ مراد کے کارندوں کو اکا دکا گالیاں بھی دی گئی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کسی گرم خون والے جوان نے سردار شاہ مراد کے اقتدار کے خلاف آواز بھی بلند کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن اس کے بزرگ، اس کا باپ، اس کا چچا اس کے پیچھے پڑ گئے ہوں گے۔ اسے لان تان کیا گیا ہوگا کہ وہ سردار شاہ مراد جیسے انداتا کے متعلق اول فول نہ بکے۔ تعویل پیش کی گئی ہوگی کہ یہ حرکت سردار شاہ مراد کی نہیں بلکہ اس کے کارندوں کی ہے، لہذا اسے قصوروار ٹھہرانا انصاف کے خلاف ہے۔ ایسے مواقع پر تمام لوگ اس حقیقت سے آنکھ بچا لیتے ہیں کہ سردار شاہ مراد وہ چھتر چھاؤں ہے جس کے تلے یہ تمام خونخوار درندے پناہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ تمام لوگ اس حقیقت سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ سردار شاہ مراد خود بھی بد کردار، بد فطرت، شرابی اور زانی شخص ہے، لیکن اس کا خیال میں چونکہ سردار شاہ مراد ایک سردار ہے، وڈیرا ہے، جاگیردار ہے، حاکم ہے، ان کی تقدیروں کا مالک ہے، لہذا یہ اس کا استحقاق ہے کہ وہ جو چاہے کر گزرے۔ وہ مائی باپ ہے، اس پر انگلی اٹھانا ان جیسے معمولی کیڑے مکوڑوں کو زیب نہیں دیتا۔ یہ وہ سوچ ہے جو ہمارے گاؤں اور ایسی ہی دیگر بستیوں میں صدیوں سے موجود ہے۔ اس سوچ کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائے، احتجاج کرے کہ خدا کی زمین پر تمام انسان برابر ہیں، تو اسے بھی میری طرح گردن سدنی قرار دیا جاتا ہے۔ گاؤں کے بھاسیوں کی نظروں کے سامنے گاؤں کی بہن بیٹیوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، لیکن تمام لوگ گونگے بہرے بنے بیٹھے رہتے ہیں اس خیال کے تحت کہ کون سا ان کی اپنی بیٹی بہن کی عزت کی طرف ہاتھ اٹھائے، اور پھر وہ وقت بھی جلد ہی آ جاتا ہے جب ان کی اپنی عزت بھی سر راکھ کھلونا بن جاتی ہے۔ مجھے لگا کہ میرے خون میں آگ کے الاؤ بھڑک رہے ہیں۔ جلتی ہوئی نگاہوں سے میں نے چچا مہرداد اور مہران کی طرف دیکھا۔ وہ حیر سے منہ پھاڑے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ قدر توقف کے بعد میں نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں نے ان زمینی خداؤں کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر رتا سائیں اور اس کے شیطان فطرت ساتھیوں نے مہران کے متعلق اپنے ناپاک ارادوں کا اظہار کیا۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں میری قوت برداشت جواب دی گئی تھی۔ میں نے اپنے سینے میں بھڑکتی نفرت کی آگ کو ان کے جسموں میں اتار دیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس رات کو اگر میں ان بدخصلت شیطانوں پر اپنے خنجر نہ آزماتا تو مہران کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے۔ میں نے جو کچھ کیا مجھے اس پر کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہے۔ اب مجھے آپ کی زبانی نصر اللہ اور گامن کے جو کرتوت معلوم ہوئے ہیں، ان کے لحاظ سے ان کی کم از کم سزا موت ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ دونوں بدبخت بھی ہمارے ہی ہاتھوں کیفر کردار تک پہنچے۔ میری اس جذباتی تقریر کے جواب میں وہ دونوں باپ بیٹی خاصی دیر تک کچھ نہیں کہہ سکے۔ جواد بار بار عجیب سی نظروں سے مجھے گھورنے لگتا تھا۔ بالآخر چچا مہرداد نے اپنی زبان کھولی۔ چلو میں نے مان لیا کہ تم نے رتا سائیں کے ساتھ جو کچھ کیا صحیح کیا، لیکن تم ابھی تک سردار شاہ مراد کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ لعنت بھیجو اس پر اور یہاں سے بہت دور کسی پرسکون مقام پر اپنی زندگی گزارو۔ کاش کہ ایسا ممکن ہوتا چچا، میں یہاں سے بہت دور چلا گیا تھا، لیکن مجھے واپس لوٹنا پڑا۔ پوری تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال یہ سمجھ لو کہ اب میں ذاتی طور پر نہیں بلکہ سرکاری طور پر سردار شاہ مراد کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ سرکاری طور پر؟ میرا اور چچا مہرداد نے بیک وقت بلند آواز میں سوال کیا۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، مزید تفصیل میں تمہیں کسی مناسب وقت پر بتاؤں گا۔ فی الحال ہم شہر کے قریب پہنچ رہے ہیں، ہمیں تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ کیسی تیاری ذوالفقار بھائی؟ جواد نے حیرانی سے پوچھا۔ میرا اور چچا مہرداد نے شاید پہلی بار مجھے اس نئے نام سے پکارنے پر توجہ دی۔ ذوالفقار؟ چچا نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یہ میرا سرکاری نام ہے چچا، بہتر ہے تم دونوں بھی مجھے اسی نام سے پکارو، یعنی ذوالفقار علی خان۔ مہرا نے زیر لب میرا یہ نام دہرایا۔ پہلی بار مجھے اس کے چہرے پر نرمی کے آثار نظر آئے۔ آپ نے بتایا نہیں کہ ہمیں شہر میں داخل ہونے کے لیے کون سی تیاریاں کرنی ہیں؟ جواد نے اپنا سوال دہرایا۔ ارے بھائی تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ ہم لوگ اس وقت سردار شاہ مراد کے مینیجر نصر اللہ کی گاڑی میں سوار ہیں۔ ہو سکتا ہے اب تک اس کی تلاش شروع ہو چکی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس گاڑی کو سردار شاہ مراد کی گاڑی کی حیثیت سے پہچان لیا جائے، لہٰذا ہمیں شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس گاڑی سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ یہ کلاشنکوف بھی ہم اپنے ساتھ لٹکائے نہیں پھر سکتے، اسے بھی کسی مناسب جگہ چھپانا پڑے گا۔ جو خدشات میرے ذہن میں موجود ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو ہم لوگ شدید خطرات کے زد میں ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کیسے خطرات ذوالفقار بھائی؟ جواد نے پھر کہا۔ وہ گاڑی کی رفتار آہستہ کر کے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا تاکہ گاڑی ٹھہرانے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر سکے۔ چچا مہرداد اور مہرا بھی حیرانی سے میری باتیں سن رہے تھے۔ میں نے مختصر الفاظ میں ڈاکٹر صنم اور افضل کے متعلق اپنے خدشات سے آگاہ کیا۔ میری گفتگو سن کر ان کے چہرے پر سرسہمگی کے تاثرات ابھرائے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں فوری طور پر وہاں پہنچنا چاہیے۔
वो शख्स डॉक्टर साहिबा को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना भी बना सकता है। अगर हमने ये जीप यहाँ छोड़ दी तो हमें वहां पहुंचने में बहुत देर लग जाएगी। हम लोग एक लम्हे का वक्त भी ज़ाया करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन ऐसी सूरत में बराह रास्त वहां पहुंचना भी तो खतरे से खाली नहीं है। फर्ज किया ये जीप किसी की नज़र में ना आए तो भी ये खतरा तो अपनी जगह मौजूद है कि अफजल अपने साथियों के साथ हम लोगों के लिए खूनी जाल बिछाए बैठा होगा। मैंने पुरतशवीश लहजा में कहा, लेकिन यह भी तो मुमकिन है कि अफजल अभी तक आज़ाद होने में कामयाब न हो सका हो। जवाद ने इजाज़त तलब नज़रों से मेरी तरफ देखा। काश ऐसा ही हो, लेकिन जाने क्यों मुझे यकीन सा हो गया है कि अफजल अपनी चाल में कामयाब हो चुका है। मैंने धीमी आवाज़ में उन्हें अपनी ज़हनी कैफियत से आगाह किया। जवाद के चेहरे पर चंद लम्हों तक कशमकश के तासरात नुमाया रहे, फिर उनकी जगह अज़्म इस्तकामत के जज्बात ने ले ली। बहरहाल मामला कुछ भी हो, वहाँ ख्वाह कितने ही खतरात मेरे मुंतज़िर हों, मैं वहाँ ज़रूर चाहूँगा। मैं आप लोगों पर जोर नहीं दूंगा, आप लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप जहाँ कहेंगे मैं आपको उतार दूंगा। ये जीप मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। जज्बाती ना बनो जवाद। डॉक्टर सनम की इज्जत और जिंदगी जिस तरह तुम्हें अजीज है, इसी तरह हमें भी है। मैं वहां जाने से इनकार नहीं कर रहा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम इस अंदाज में वहां पहुंचे कि अफजल अगर अपनी साजिश में कामयाब हो गया हो तब भी वो फौरी तौर पर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके। हमें इतनी मोहलत मिल जाए कि हम लोग बखूबी अपना दिफा कर सकें। हम लोग वहां जरूर जाएंगे, लेकिन भरपूर तैयारी और मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ। अगर हम अपनी आंखें बंद करके इन लोगों के फंदे में फंस जाएं तो इस तरह हम डॉक्टर सनम की कोई मदद नहीं कर सकेंगे। तो फिर आप ही बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। मेरी बात का वजन महसूस करके जवाद ने अपने जोश पर काबू पाने की कोशिश की। जरा सब्र करो, मैं तुम्हें पूरी तफसील से आगाह करता हूं। तुम बेशक ये जीप भी ना छोड़ो। इस सूरत में तुम्हें सिर्फ ये कोशिश करना पड़ेगी कि हम ऐसे रास्तों से गुजरें कि कम से कम लोगों की निगाह हमारी जीप पर पड़ सके। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या तरकीब सोची है। मैंने खासी तफसील से उन्हें अपने जहन में मौजूद मंसूबे से आगाह किया। मेरी तवक्का के मुताबिक इन्हें मेरी मनसूबाबंदी बहुत पसंद आई। थोड़े से रद्दोबदल के बाद हम चारों इस मंसूबे पर मुत्तफिक हो गए। जब हम शहर में दाखिल हुए तो सूरज की नरम किरणें दरख्तों की सरसब्ज चोटियों का बोसा ले रही थीं। सड़कों पर पूरी तरह चहल पहल शुरू नहीं हुई थी। जवाद शहर की बड़ी सड़कों से बचता बचाता कम आबाद सड़कों से गुजरता शहर के मरकज की तरफ बढ़ा। इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर अपनी स्वाबदीद पर काम कर रहा था। 17 ब्लॉक के एक गंदे से कोने में वाकई एक छोटे से घर के सामने पहुंचकर उसने गाड़ी रोक ली। इंजन बंद करके वो गाड़ी से उतरा और खासे जोर से मकान का दरवाजा खटखटाया। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने पहले से भी ज्यादा कुव्वत से दरवाजा खटखटाया। कौन अबे? अंदर से किसी ने करख्त लहजे में पूछा। जवाब देने के बजाय जवाद ने पहले से भी ज्यादा जोर से तकरीबन पूरी कुव्वत से दरवाजा खटखटाया। अबे क्या पागल हो गया साले? दरवाजा तोड़ेगा क्या? जरा सब्र कर, चुरी के नीचे तम तो ले। अंदर से किसी ने शदीद नाराजगी के आलम में कहा। जवाद के लबों पर एक शरीर मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने एक बार फिर जोर से दरवाजा खटखटाया। और तेरी तो अभी तुझे मजा चिखाता हूं कि औलाद पागल की नस्ल। किसी के भारी कदमों की आहट दरवाजे की तरफ बढ़ी। एक झटके से दरवाजा खुला। मैं दरवाजे को एक मोटे ताजे नौजवान के वजूद से भरते देखा। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी, लेकिन उसकी हालत ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसने धारीदार पाजामा पहना हुआ था, जिसका आजार बंद तकरीबन जमीन को छूता हुआ झूल रहा था। इसके गले में मैला सा तौलिया लिपटा हुआ था। चेहरे पर शेव का साबुन लगा हुआ था। जवाद की इस चाल अंगेज मुदाखलत के बायस उसे अपनी शेव अधूरी छोड़कर आना पड़ा था। गुस्से के बायस उसकी तोंद बुनियान से नहायत मज़हक का खेज अंदाज में फूलती पिचकती नजर आ रही थी। जवाद को देखते ही उसका सारा गुस्सा हवा हो गया। उसने तेजी से उसकी तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन आजार बंद पैर के नीचे आने के बायस वो मुंह के बल गिरते गिरते बचा। ओए जवाद तू, और मुआफ करना यार, पता नहीं गुस्से में क्या क्या कह गया। तू इतने सुबह सवेरे कैसे? वो वालियाना अंदाज में जवाद से लिपट गया। बस मक्खनबाजी बाद में, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। मुझे तेरे से बहुत जरूरी बातें करनी है। चल घर में चल। उसने नाहित बेतकल्लुफी से उस फरबा नौजवान को घर के अंदर धक्का दिया। फिर वो हमारी तरफ मुड़ा। आप लोग यहीं ठहरे, मैं अभी 2 मिनट में वापस आता हूँ। ये मेरा दोस्त खालिद है, मैंने इसके मुतालिक आपको बताया था। हमने इस बात में सर हिला दिए। वो दोनों घर में दाखिल हो गए। इनके जाते ही मुझ पर इस तरह तारी होने लगा। वो गाड़ी बेहद तबाहकुन टाइम बम के मानी थी, जो किसी भी वक्त हम लोगों के लिए मौत का सामान बन सकती थी। जो वक्त गुजरता गया, हम लोगों के इज़्तिराब में इजाफा होता चला गया। आखिरकार खुदा खुदा करके हमें इन दोनों की शक्ल नजर आई। इस दौरान में खालिद ने अपना हुलिया दुरुस्त कर लिया था। वो सीधा जीप की तरफ बढ़ा। हमारे देखते ही देखते वो जीप में बैठा और इससे स्टार्ट करके एक तरफ रवाना हो गया। आप लोग घर में चलिए, हमें कुछ देर यहाँ ठहरना होगा। जवाद ने हाथ के इशारे से हमें घर में दाखिल होने की दावत दी। हम लोग बिला तवक्कुफ घर में दाखिल हो गए। पहली नजर में हमें अंदाजा हो गया कि 2 कमरों का यह घर किसी
छड़े चाट शख्स की मलकियत है। हर तरफ जबरदस्त बेतरतीबी और लापरवाही के आसार बिखरे नजर आए। मेहरा के चेहरे पर यह हालात देखकर नागवारी के तासुरात उभर आए। माफ कीजिएगा, दरअसल मेरा यार बहुत ही लापरवाह और मनमोजी किस्म का बंदा है, लेकिन इसके साथ साथ ये शायद इस शहर का सबसे अच्छा मोटर मैकेनिक है। चंद ही सालों में इसने अपना अच्छा खासा बड़ा गैराज बना लिया है। मैंने वो जीप इसके हवाले कर दी है। ये इसकी इतनी महारत से शक्ल बदलेगा कि किसी का बाप इसे पहचान नहीं सकेगा। फिलहाल ये हमारे लिए एक और गाड़ी ले आएगा जिस पर बैठकर अपनी मंजिल की तरफ हम रवाना हो जाएंगे। जवाद ने मुतमईन लहजे में कहा। मैंने एक बार फिर महसूस किया कि उसकी नजरें बार बार भटक कर मेहरा के चेहरे पर जमने लगती हैं। ताहम उसने बराह रास्त मेहरा पर नजर डालने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो इससे निगाह चुराने की हत्तुल वसे कोशिश कर रहा था। इसी वक्त मेरी नजरें दूध के बर्तन पर पड़ी जो शायद कुछ देर पहले खरीदा गया था। मेहरा, तुम ये दूध बावर्ची खाने में ले जाओ, मुझे यकीन है वहां चाय बनाने का सामान मौजूद होगा। जब तक खालिद साहब वापस आए तुम चाय तैयार कर लो। मैंने धीमे लहजे में मेहरा को हदायत की। तवक्का के इन मुताबिक बावर्ची खाने में नाश्ते की तैयारी का मुकम्मल सामान मौजूद था। मिट्टी के तेल के चूल्हे पर चाय तैयार करने में उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। वो चाय तैयार करके फारिग ही हुई थी कि खालिद वापस आ गया। वो अपने साथ एक बड़ा सा शॉपिंग बैग भी लाया था जिसमें केक, बिस्किट, टूथपेस्ट्री वगैरह थी। कौन सी गाड़ी लाए हो? जवाद ने उससे पूछा। हाइलक्स है, डबल कैबिन 4 व्हील ड्राइव। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? अरे नहीं मेरी जान, इस्तेमाल करो और दरिया में फेंक दो। तेरी आंख के इशारे पर ऐसी लाखों गाड़ियां कुर्बान। जो रेंज रोवर ले गए थे इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी थी तुमने? जवाद ने सवाल किया। अरे नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इस गाड़ी के कागजात, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर सब फर्जी थे। किसी के बाप को भी इसकी असलियत का पता नहीं चल सकता। इस गाड़ी के साथ भी यही सूरत-ए-हाल है। तुम्हारा भाई कच्चे काम नहीं करता। खालिद ने चाय पीते हुए फखरिया अंदाज में कहा। अच्छा अब जरा संजीदा बातें हो जाएं। मैंने इन तमाम लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहा। हमने जो मंसूबा बनाया वो मुख्तसर इस तरह है। हम लोग इस गाड़ी में डॉक्टर सनम के घर की तरफ चलेंगे। घर से खासी दूर हम गाड़ी रोक देंगे। चचा मेहरदाद और मेहरा को वहां उतार देंगे। जवाद वहीं गाड़ी में रहेगा, जबकि मैं इन दोनों की निगरानी और हिफाजत के लिए इनके पीछे पीछे काफी फासला रखकर चलूंगा। अगर हमें डॉक्टर सनम के घर के आसपास खतरे के आसार नजर आए तो हम चुपचाप सीधे निकलते चले जाएंगे। बसूरत दीगर ये दोनों डॉक्टर सनम के घर पहुंचकर इतलाई घंटी बजाएंगे। अगर दरवाजा खोलने के लिए डॉक्टर सनम खुद आई तो इसका मतलब है कि हालात फिलहाल खराब नहीं हुए हैं। ऐसी सूरत में खुद मैं भी सामने आ जाऊंगा। बिलफर्ज मुहल अगर गेट पर डॉक्टर सनम की बजाय अफजल खुद आए तो इसका मतलब ये होगा कि वो अभी तक फरार नहीं हुआ है। ऐसी सूरत में आप दोनों डॉक्टर सनम से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करेंगे। जाहिरी बात है कि वो आप दोनों को टालने की कोशिश करेगा। इस दौरान में मौका मिलते ही मैं आंख बचाकर चारदीवारी से अंदर कूद जाऊंगा। इसके बाद मैं मौका महल की मुनासबत से अपनी हिकमत अमली वज़ा करूंगा। इस दौरान में जवाद अपनी गाड़ी के साथ कुर्बोजवार में मौजूद रहेगा। ठीक है, हमने तमाम बातें पूरी तरह समझ ली हैं। खालिद का इसरार है कि ये भी हमारे साथ जाएगा। मुझे आप लोगों की इजाजत चाहिए, जवाद ने कहा। ठीक है, खालिद साहब को भी अपने साथ ले चलो, लेकिन इन्हें अमली कार्रवाई से अलग रखने की हर मुमकिन कोशिश करना। जवाद और खालिद ने इकरार के इजहार के लिए अपनी गर्दनों को जुम्बिश दी। मुमकिन हद तक फिर पूरी तैयारी के बाद हम गाड़ी में आ बैठे। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील खालिद ने संभाल लिया था। मैं और जवाद फ्रंट सीट पर बैठे, जबकि चचा मेहरदाद और मेहरा को अकबी नशिस्तों पर जगह मिली। खालिद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर में मुझे अंदाजा हो गया कि वो जवाद से भी माहिर ड्राइवर है। गाड़ी उसकी उंगलियों के इशारों पर नाच रही थी। जवाद ने मुख्तसरन उसे रास्ते के मुताल्लिक हदायत थी। इसके साथ ही गाड़ी फराटे भरने लगी। बहुत कम वक्त में हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए। एक मुनासिब जगह देखकर खालिद ने गाड़ी ठहरा ली। मेहरा ने सहारा देकर चचा मेहरदाद को गाड़ी से उतारा। मेहरा के सर पर खालिद की मुहैया करदा सफेद चादर थी। मैं भी इनके साथ ही गाड़ी से उतर आया। वो दोनों आगे बढ़े। चचा मेहरदाद बुरी तरह लंगड़ा रहा था, तहम वो मेहरा के सहारे से आगे बढ़ता रहा। मुनासिब फासला रखकर मैं भी उनके ताकुब में चल पड़ा। मेरे नेफे की बेल्ट में जवाद का साइलेंसर लगा पिस्तौल मौजूद था। अपनी जैकेट में गाड़ी में छोड़ाया था। बगौर आसपास का जायजा लेने के बावजूद मुझे आसपास किसी किस्म के खतरे के आसार नजर नहीं आए। इस वक्त इस सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी। नहायत सुस्त रफ्तारी से मैं इन दोनों बाप बेटी का तहक्कुब करता रहा। मेरी तरफ से कोई इशारा न पाकर वो दोनों डॉक्टर सनम के घर के गेट की तरफ बढ़े। मैंने एक महफूज और करीब तरीन पनागाह तलाश की, फिर डॉक्टर सनम के घर का जायजा लेने लगा। चचा मेहरदाद ने इतलाई घंटी का बटन दबाया। धड़कते दिल के साथ मैं रद्द अमल का इंतजार करने लगा। कदर तवक्कुफ के बाद चचा मेहरदाद ने एक बार फिर इतलाई घंटी का बटन दबा दिया। मैंने उनकी नजरों के जाविये से अंदाजा लगाया कि वो गेट की तरफ आ रहा है। मेरे हाथ की गिरफ्त पिस्तौल के दस्ते पर सख्त होने लगी। हैजान की शिद्दत से मुझे अपनी रगें खींचती हुई सी महसूस हुई। अंदर से आने वाला गेट पर पहुंचा। उसकी एक झलक देखते ही मेरे सीने से गहरी सांस आजाद हुई।
मेरे कशीदा आसाब ढीले पड़ गए। वो बिला शुबा डॉक्टर सनम ही थी। नीले रंग के शब ख्वाबी के लिबादे में मलबूस, अपनी घनी जुल्फों में ढीले ढाले चोड़ी की शक्ल में लिपटे, सुबह की नरम धूप में नुकरई मुजस्मे के मानद लश्कारे मार थी। उसे देखकर चचा मेहरदाद और मेहरा भी पुरस्कून हो गए होंगे। मैंने ओट से निकलकर गेट की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन जाने क्यों मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। खतरे से निजात के पुरकैफ एहसास ने मुझे शायद शरारत पर उकताना शुरू कर दिया था। मेरी तवक्का के मुताबिक डॉक्टर सनम ने उन्हें घर के अंदर बुलाने की बजाय बाहर ही इसे टालने की कोशिश की। मायूसी के आलम में उनके चेहरे लटक गए। मेहरा ने उससे कुछ कहा। डॉक्टर सनम ने उस बात में सर हिलाया और गेट से पीछे हटकी। मेहरा ने गर्दन के इशारे से मुझे हरकत में आने की हदायत की। मुझे मालूम था उसने डॉक्टर सनम से पानी पिलाने की फरमाइश की होगी। यूं ही मुझे यकीन हुआ कि डॉक्टर सनम अब घर में दाखिल हो चुकी है। मैं तेजी से हरकत में आ गया। चारदीवारी के कोने के पास पहुंचकर मैंने उछक कर दीवार का ऊपरी सिरा थामा और अपने बाजुओं पर जोर डालकर ऊपर उठता चला गया। अगले लम्हे में चारदीवारी के अंदर उतर चुका था। सामने ही मुझे डॉक्टर सनम की गाड़ी नजर आ गई। मैं तेजी से उसके हक्म में छुप गया। ऐन उसी वक्त घर के अंदर से डॉक्टर सनम नमूदार हुई। अपने मामूलात के मुताबिक उसने दाखिली दरवाजे की बजाय घर के पहलू में वाक़ छोटा दरवाजा इस्तेमाल किया। उसने अपने हाथ में प्लास्टिक की बोतल और शीशे का गिलास उठा रखा था। गेट के पास पहुंचकर उसने पानी का गिलास भरा और उसे सलाखों के दरमियान से बाहर की तरफ बढ़ा दिया। एन उसी वक्त मैं हरकत में आ गया। हवा के बेआवाज झोंके की मानिद में घर के पहलू में पहुंचा। दरवाजा खोलकर मैंने एहतियात से अंदर झांका। मुझे सामने हाल में कोई नजर नहीं आया। मैं तेजी से अंदर घुसता चला गया। अपने छुपने की जगह भी मैंने फौरन तलाश कर ली। भारी भरकम पर्दों ने बासानी मुझे पनाह दे दी थी। मेरे वजूद में एक पुरलुत्फ सनसनी की लहर तोड़ रही थी। मुझे अचानक अपने सामने पाकर डॉक्टर सनम बुरी तरह चौंक पड़ेगी। इसकी हवास बाख्तगी का मैं खूब मजाक उड़ाऊंगा। वो साला अफजल अभी तक मसैरी से जकड़ा अपनी किस्मत को रो रहा होगा। मेरी मुतवक्का नजरें दरवाजे पर जमी हुई थी। मिलाकर दरवाजे में जुम्बिश हुई। डॉक्टर सनम अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में पानी की बोतल और गिलास था। मुझे उसके चेहरे पर गहरी सोच और तफक्कुर के आसार नजर आए। वो यकीनन मेरे और मिर्जा और सदीकी के मुतल्लिक सोच रही थी। वो नहायत बेचैनी से हमारा इंतजार कर रही होगी। हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी परेशानी में इजाफा हो रहा होगा। पानी की बोतल रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद वो अफसल के कमरे की तरफ बढ़ी। जो ही वो कमरे में दाखिल हुई, मैं भी पंजों के बल चलता कमरे के दरवाजे के पास पहुंच गया। मेरे कान अंदर से आने वाली आवाजों पर जम गए। देखो अफसल, तुम प्लीज नाश्ता कर लो। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने अच्छे अंडे तैयार किए हैं। मैंने डॉक्टर सनम की मुल्तजई आवाज सुनी। नहीं, मैं हरगिज नाश्ता नहीं करूंगा, ना खाना खाऊंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। अफसल ने मासूमाना गुस्से के साथ कहा। अगर मैं इसकी तरफ से मशकूक ना होता तो उसके लहजे में मौजूद मासूमाना जिद की झलक यकीनन मुझे मुतासर करती। अलबत्ता मैं कोशिश के बावजूद उसके लहजे में तसन्नो और बनावट का उनसर तलाश नहीं कर सका। ऐसा ना कहो अफसल, वरना तुम्हारी निदा तुमसे नाराज हो जाएगी। हो जाए, मुझसे नाराज हो जाओ। मैं पहले ही तुमसे नाराज हूं। तुम कुछ भी कहो, मैं हरगिज नाश्ता नहीं करूंगा। लेकिन क्यों, कुछ पता तो चले, तुम क्यों नाराज हो? डॉक्टर सनम ने बेचारगी से कहा। तुम अपनी निदा को भी नहीं बताओगे? जाओ जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। तुम मेरी निदा नहीं हो, तुम मेरी बात नहीं मानती हो। मैं तुमसे नाराज हूं। अरे अरे भाई, नाराजगी की कोई वजह भी तो होगी, वो वजह तो मालूम हो। डॉक्टर सनम ने परेशानी के आलम में कहा। यकलख्त मेरे दिल की धड़कन में इजाफा होने लगा। मेरे जिस्म की तमाम ताकत मेरे कानों में सिमट आई। फिर तुम मेरे हाथ क्यों नहीं खोलती? जब तक तुम मेरे हाथ नहीं खोलोगी मैं कुछ नहीं खाऊं पीऊंगा, भूखा मरूंगा। अफसल ने फैसला कुन लहजे में कहा। मुझे अपने शकूक यकीन में बदलते महसूस हुए। ऐसी बात न करो अफसल, मरे तुम्हारे दुश्मन। तुमने आइंदा ऐसी बात की ना तो तुम्हारी निदा चांद दे देगी। मुझे डॉक्टर सनम के लहजे में ऐसी बेसाख्तगी नजर आई कि मैं दिल ही दिल में उसे बेसाख्ता दाद देने पर मजबूर हो गया। वो वाकई गजब की अदाकारी कर रही थी। मर जाओ, तुम भी मर जाओ, हम दोनों मर जाएं। तुम मेरी निदा नहीं हो। तुम मेरी निदा होती तो मेरी बात जरूर मानती। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता, मैं मजबूर हूं अफसल। फिलहाल मैं तुम्हारे हाथ नहीं खोल सकती। तुम दोपहर तक सब्र कर लो, फिर मैं तुम्हारे हाथ खोल दूंगी। अभी तुम मेरे हाथ से खाना खा लो। नहीं, मैं अपने हाथ से खाना खाऊंगा, तुम मेरा सिर्फ एक हाथ खोल दो, उसने जिद्दी बच्चे के अंदाज में कहा। ओहो, तुम्हारी इस बहस में नाश्ता बिल्कुल ठंडा हो गया। मैं भी इसे गर्म करके लाती हूँ। मैंने डॉक्टर सनम की पुरसकून आवाज सुनी। मैंने लंबे डग भरे और पलक छपकने में बावर्ची खाने में पहुंच गया। डॉक्टर सनम के कदमों की चाल बावर्ची खाने की समत बढ़ी। वो नाश्ते की ट्रे उठाए बावर्ची खाने में दाखिल हुई। मैंने बड़ी खामोशी से बावर्ची खाने का दरवाजा बंद कर लिया। वो नाश्ते की ट्रे चूल्हे के पास रखकर पलटी। मुझ पर नजर पड़ती उसके हल्क से हल्की सी चीख बरामद हुई। वो हैरत और बेयकीनी के आलम में मुंह फाड़े मेरी शक्ल देख रही थी। मिलाकर उसे अपनी आंखों पर यकीन आ ही गया। तुम? उसे लड़खड़ाती जुबान से अपनी हैरत का इजहार करना चाहा।